नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और इंडोनेशिया की सरकार ने पाम तेल और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज पे बड़ा फैसला किया है। अपनी संसद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश दुनिया में सबसे ज्यादा पाम तेल का उत्पादन है, फिर दूसरे देश उनके दाम कैसे तय करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इंडोनेशिया दाम तय करेगा और जिसे खरीदना है वो खरीदे, नहीं तो वो इस्तेमाल उसे कर लेंगे। वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉटन के दाम एक हफ्ते के निचले स्तर पर हैं और इंडस्ट्री सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग कर रही है। इन सबको इंडस्ट्री कैसे देखती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईवीपीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई हैं, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विनय कोटक हैं एंड मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी है। लेकिन सबसे पहले बात हम यहाँ पर पाम तेल की करेंगे। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यहाँ पर इंडोनेशिया की तरफ से आती हुई नजर आई हैं। अब जो भी एक्सपोर्ट्स होंगे वो स्टेट एजेंसी के द्वारा होंगे और इस ट्रांजिशन के लिए 3 से ज्यादा महीने का समय यहां पर इंडस्ट्री को दिया भी जाएगा। काफी सारी क्लैरिफिकेशंस सुधाकर जी इसके बाद हमने इंडोनेशिया से आते हुए देखी भी हैं। आप ज्यादा जानते होंगे क्या कुछ इस वक्त यहां पर सिचुएशन है, और इंडिया जो कि इतना बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, किस तरह से ये हमें इम्पैक्ट करेगा? हाँ जी, yes, thank you. I would like to explain the context, the impact of it on Indian situation. Okay, so obviously, for whatever reasons that you mentioned, that Indonesia wants to do export canalization. Basically, every player for about 30 million tons of oil will have to route through an export agency. Which is named by Danantara, which is the agency in Indonesia. And so at the outset, it does look like their intention is something else, which is like tighter control, export invoicing to be corrected, free flow of goods. But when it comes to implementation, there would be a lot of challenges. That's why the markets were down in the last couple of days. And S&P and Moody actually have downgraded Indonesian situation, and their Sensex has lost about, JCI it is called Indonesia, and it's lost about 12 to 13%. Okay, so these are the immediate knee-jerk reactions that have happened. I think there has been a corrective mood right now in the last 24 hours. Now what is happening is that there was initially a lot of confusion. Okay, now they're saying that Indonesian government is saying that all the old contracts will be honored. There's no problem. We are not stopping anything. It is not like the ban that has happened couple 2-3 years back. It is only a regulatory thing, and also no disruption in supply chain. So the market questions basically are how it is going to work, whether it is possible, what is the magnitude of this task, how will people negotiate, how will people, wash out. Sometimes the vessels are not available. So these are the practical implications. So I would put, from my perspective, anywhere between 3 to 6 months for this issue to get resolved by itself, because it's, as you can see, it is really mammoth task of recanalizing the whole thing. Number two, what are the impacts for India? मिस्टर देसाई, जब आप कहते हैं कि 3 to 6 months में ये रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा या फिर आपको लगता है वो ट्रांजिशन हो जाएगा? ओके, लेट मी क्लैरिफाई ये सिचुएशन क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे होगा ये. ओके, सो because there are a lot of implementation challenges, I think everybody is recognizing now. Why it is important for global market? Yes, it is a big thing, because Indonesia produces 58% of the world market production, and Indonesia also exports total of 30 million tons to everywhere. And India, we buy about 3.5, 3.3 million tons of palm oil from Indonesia. Now currently it looks like there is no disruption as such. It's not the same situation as the ban, like I said, but it is going to, a lot of clarity is going to come in. But one assurance that we got from Danantara recently, I think just about a few hours ago, that there's no problem for all the old contracts. It's not a force majeure. Everything will be honored. But the government said that we will review those prices. But technically, actually, every exporter from Indonesia applies through PEB, where the details are given already. So all the details are available. So we don't know
how it shapes. As far as Indian context is concerned, yes, Ji. it is a good news for Malaysia. We can continue to import from Malaysia. From Indonesia also, I don't see, like I said, I don't see any restrictive trade practice. It is only that they want to recalibrate, re-regulate the exports. In a nutshell, these challenges will be very difficult to overcome. It will take a lot of time, and a postponement of this decision is in the offing, I feel, when I summarize the whole situation the way I'm trying to think. Yeah. ओके मिस्टर देसाई, एक और चीज़ है यहाँ पर जहाँ तक इंडोनेशिया की बात आती है। एक तरफ वो यहाँ पर B40 का B50 करना चाहते हैं, दूसरा वो एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या अपने कंट्रोल में लेके आना चाहते हैं। तो जिस तरह से वहाँ पर फीलर्स आ रहे हैं या जिस तरह की वहाँ पर स्टेटमेंट्स है, आपको लगता है लेसर एंड लेसर पाम ऑयल हम वहाँ से आता हुआ देखेंगे? देखिए 3.3 मिलियन टन तो ऑयल तो आना ही पड़ेगा वहां से, बिकॉज इंडिया नीड्स दैट ऑयल एंड इंडोनेशिया नीड्स इंडियन मार्केट फॉर दैट मच ऑफ ऑयल. B50 नए होने के कारण टेक्निकल हो सकता है. आई थिंक दे ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट अ स्लो डाउन in the biodiesel to B45. So there will be some correction on the biodiesel. It is not something that we should be worried about as a supply chain major disruption. I think that's the intent Indonesia also expressed. I think the supplies will continue, which is one of the good news. And second, in terms of markets, it is bigger than what palm oil is, because the Indonesian government is talking about this for coal also, for example, for ferroalloys. They're talking about many commodities in which Indonesia exports. So export canalization is a tough thing. From Indian impact point of view, I was also thinking that, see, all our trades are governed through ASEAN treaty. Okay? So whether it will be called restrictive trade practice is not, we are yet to think on those lines. It is not a restrictive trade practice because they are also guaranteeing that it is only rerouting. It's not a restriction. But if the prices are going to be decided by a government agency or a third party, then from my point of view, it is not a free market operation. So these two are the areas in which I see a concern or a need for clarity about what is going to happen. It is something to watch as to what's going to happen. But this should cause a selling pressure. There are long liquidation in the BMD because of this issue. There is a selling pressure, and that's why the market is down. So I would say probably it might be eventually buying opportunity for India, because we also need to buy the forward future contracts. मिस्टर देसाई, जैसे आपने कहा जो 3.5 मिलियन टन इंडिया को चाहिए, वो तो इन सम सेंस हमें चाहिए ही, वो शायद कॉन्वर्सेशंस ऑन हायर लेवल्स भी करके लेना पड़े तो शायद लेना ही होगा. जिस तरह से हम इंडियन फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिस तरह से हमारी डिपेंडेंस आउटसाइड ऑयल पर है, हम बाकी दूसरी कंट्रीज में भी यहाँ पर अब तेल लेने लगे हैं. अर्जेंटीना है, पापुआ गिनिया है, नई यहाँ पर डेस्टिनेशंस रादर ओरिजिन्स उभरते हुए नजर आए हैं. कैसे देखते हैं आप ये? इज इट अ नियर टर्म थ्रेट, या फिर आपको लगता है आप एट ऑल बिल्कुल भी वरीड नहीं है इस मामले में? Manisha ji, I think slightly differently. I think being a big buyer is also a big power. Okay. Yes, of course, India is the largest buyer. We are dependent, but it's also power. As I can see from the recent past 1 or 2 years, any country which has got surpluses, whether it is canola or whether it is Iraq or whether it is Russia, any one of the places, I think the natural choice for selling oil is India. So I would be less concerned because of B50, which you mentioned. If the prices of palm oil go up, for example, okay. So I think we will have to start developing as part of the strategy to de-risk in terms of supply chain security, food security, oil security point of view. But I think there are enough avenues. Thailand, for example, has started yielding 1.2 million tons in the last 1 or 2 years. So I think eventually market will take its course. But I don't believe that
because there is a regulatory change, it will change the supply-demand dynamics. You see, it would still remain that this much of oil would have to find its way, whether it's to India or anywhere. But like I said, we are not talking about 3 million tons of India import. We are talking about total exports of Indonesia. I don't see a problem. I see that these issues will get settled soon. It's too early actually to comment so much on the next day. Maybe I took the risk, but it will take some time to resolve itself. जी मिस्टर देसाई अप्रिशिएट आपका टाइम। यहाँ पर एक फाइनल सवाल यहाँ पर है, जैसे आपने कहा कि अभी भी शायद अर्ली है, क्लैरिटी अभी भी आती रहेगी दिनों में, आपकी कॉन्वर्सेशंस वहाँ पर एजेंसी के साथ एंड आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के साथ भी वहाँ पर होगी। मेजर मुद्दे अब मेजर जो टू एंश्योर सिक्योरिटी की वो फ्लोज हमें मिलते रहें, प्राइसिंग यहाँ पर फेयर हो, तो क्या टॉप ऑफ द माइंड है इन सेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन वहाँ पर? So everybody is concerned. Remember that the Indonesian exports are more concerned about this than us, than the Indian buyers, because it's a complete unthought of change. It's like such a big mammoth business to be routed through a canalized agency. What the reasons why they are intending to do are clear, but these implementation changes will take some time. I again re-emphasize that the government policies of this nature is not like a ban. It won't change the supply-demand dynamics. The mutual dependency of Indian market and Indonesian market to import and to trade will still remain because it's big enough oil quantum. पॉइंट टेकन मिस्टर देसाई, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। पूरा कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, अभी की क्या खबर है और आगे जाकर यहाँ पर क्या क्लैरिटी और आ सकती है, वो सभी कुछ समझाने के लिए। well, ये तो बात हुई पाम तेल की, जहाँ पर इंडोनेशिया ने काफी बड़ा चेंज किया है, वो आगे किस तरह से कल्मिनेट होगा वो देखना होगा। लेकिन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विनय कोटक अब हमारे साथ हैं। विनय जी नमस्कार। कॉटन की जहां तक बात है, प्राइसेस बढ़े हैं, हमने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यों की त्यों है और मार्जिन्स कुछ यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल कॉटन ट्रेड आप फिलहाल यहाँ पर कैसा देखते हैं? काफी सारी मांगे हैं ऑफकोर्स सरकार से, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को लेकर दिक्कतें हैं, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का असर भी यहाँ पर पड़ा है, तो ट्रेड कैसा है और यहाँ से अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर मनीषा जी। अभी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे, आइस जो इंटरनेशनल कॉटन का जो बेसिस है फ्यूचर्स यूएसए का, दैट हैज गॉन अप बाय अबाउट 40%। वो लास्ट एक महीने 1.5 महीने के अंदर 40% इंक्रीज हुआ है। अभी उसका कारण ये था मेनली, एक तो बहुत ही बड़ी शॉर्ट पोजीशन थी, अबाउट 1 करोड़ के ऊपर गांठ की शॉर्ट पोजीशन थी। तो जैसे ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ गई और क्रूड ऑयल के प्राइस वेंट अप बाय अबाउट 40%, तो पूरे जितने शॉर्ट कवरिंग वाले थे पूरे एक साथ में आ गए। सो उसके कारण ये 40% का गैलपिंग हो गया। एंड सो फार इवन द डिमांड हैज बीन एबल टू एब्जॉर्ब दिस प्राइस। लेकिन अभी ये लग रहा है कि ये प्राइस में थोड़ा रेजिस्टेंस है। यान प्राइस भी थोड़े जो ऊपर 30 CCH के बढ़ के 325 हो गए थे, वो आज 310 का प्राइस है, यानी देयर इज अ फॉल ऑफ अबाउट 4 to 5% इन द यान प्राइस। तो अभी ये लग रहा है कि ये प्राइस में थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये प्राइस में शायद एब्जॉर्ब करना मुश्किल है। फिर भी ये प्राइस में भी आज यान की मिलें कमा रही है। पहले से मार्जिन कम हुआ है लेकिन स्टिल दे आर बेटर ऑफ। ये देख के ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा रुई गिरेगा भी नहीं। दिस इज द पोजीशन ऑफ प्राइस मार्केट नाउ। एक्सपोर्ट एज फार एज इंपोर्ट ड्यूटी इज कंसर्न, हमारा इंपोर्ट 3 कैटेगरीज में होता है। पहला अपना कैटेगरी है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, जिसमें हमको जीपीटी चाहिए, यानी बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए 40 के ऊपर। जो दिस आर द डिमांड्स ऑफ द बाइंग कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूरोप, मेड क्लॉथ आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। तो गवर्नमेंट ने ये समझ के बहुत ही उसमें से ड्यूटी निकाल दी है, एंड दैट इज अ वेरी गुड स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन। सेकंड कैटेगरी जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ कंटेमिनेशन फ्री कॉटन। आज यूएसए, फिर यूरोप,
यूके, एवरीबडी वांट्स क्लॉथ, गारमेंट्स या yarn मेड आउट ऑफ कंटामिनेशन फ्री कॉटन. इंडिया में कंटामिनेशन फ्री जो कॉटन है वो बहुत कम होता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर and we don't have a machine picking methods also because the land holdings are very, very small. We have no other choice but to import contamination free cotton from USA, Australia and Brazil. अभी पोजीशन ये है कि our dream of the finance ministry, our even PM is that we should have 100 billion exports of textile products by 2030. हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी बहुत ही एफर्ट्स करके यूरोप का एफटीए हो गया, यूके का एफटीए हो गया, काफी अदर ऑस्ट्रेलिया का हो गया, काफी अदर कंट्रीज का हो गया. आज यूएसए में भी जो टॉप अप ड्यूटी थी 25% की, वो अभी इंडिया के लिए घट के 10% हो गई है. तो विनय जी, काफी सारे पॉजिटिव्स हैं जो आप हमें बता रहे हैं. उसके बावजूद भी जैसे आपने कहा बिजनेस थोड़ा सा यहाँ पर स्लो है. अगर हम ओवरऑल मार्जिन्स की बात करें और एक्सपोर्ट्स की बात करें, वो आपको किस तरह से पैन आउट होते हुए दिखते हैं? मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये एक्सपोर्ट के लिए कंटामिनेशन फ्री कॉटन चाहिए. अगर अपनी 11% ड्यूटी चालू रहेगी तो वी विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चाइना, इंक्लूडिंग वियतनाम. सो अपना जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो काफी घट जाएगा. सो दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ एनी एक्सचेंज. इसमें से वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट का ही होने वाला है. So government will not be losing any reserve or any foreign exchange on this. It will be an additionality. There will be definitely a much more value-added exports will take place. That is why we are asking. Cotton Association ने अप्रैल से अक्टूबर तक का रिक्वेस्ट भेजा है कि भाई 11% ड्यूटी आप निकाल दो. क्योंकि मार्च महीने तक फार्मर्स का 90% अराइवल्स हो जाता है, बिचाई हो जाती है. तो कुछ के पास जो 10% है वो स्पेकुलेटिव फार्मर्स स्टॉकिंग करते हैं, बाकी सब हाथ से निकल जाता है. तो फार्मर्स को उसमें कोई ज्यादा नुकसान होने वाला है नहीं. दूसरा ये है कि फार्मर्स आर स्टिल प्रोटेक्टेड बाय एमएसपी ऑफ द गवर्नमेंट. आज अभी भी 7% एमएसपी बढ़ी हुई है, बट देयर इज नो प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स. सो दिस इज काइंड ऑफ एन प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर बाय रिमूवल ऑफ 11% ड्यूटी एटलीस्ट इन अ लीन पीरियड बिटवीन अप्रैल टू सितंबर. So that is why our request has been, even Textile Ministry, CCI, all are convinced that this is required. Point taken. विनय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से वो पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर समझाने के लिए भी कि 11% ड्यूटी कट क्यों इंपॉर्टेंट है और किस टाइम में करना चाहिए. उतनी डिटेल्स के साथ यहाँ पर ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशंस भी हुए हैं. बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज आपका साथ जुड़ने के लिए. इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है. लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी लेके आएंगे, क्योंकि इनिशियली ये स्टेटमेंट्स आई थी कि यूएस और ईरान के बीच में बातचीत जारी है, बहुत जल्दी फैसला हो सकता है. लेकिन अब ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम को कंट्री से बाहर नहीं जाने देंगे और वो एक इमीडिएट रिएक्शन हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा. 104 के स्तर भी हमने आज दिन में तोड़े थे नीचे की तरफ, लेकिन अब 2% की तेजी और 107 के ऊपर प्राइसेस वापस. नवनीत, कैसे देखते हैं? सारी स्टेटमेंट्स हैं और क्रूड हर हेडलाइन, हर ट्वीट को रिएक्ट करता हुआ. यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैसेज है कि बिकॉज क्रूड हर रिएक्शन, हर हेडलाइन पर इतना मेजर मूव दे रहा है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को किस तरह से और किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है. हमने कल के सत्र में करीब 5 से 6% का फॉल देखा था क्रूड ऑयल प्राइसेस में. आज के सत्र में भी करीब 2-2.5% नेगेटिव था. एंड एक सिंगल स्टेटमेंट कि यूरेनियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड अब इसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इट्स द होल नैरेटिव. एंड वी सी प्राइसेस ऑलमोस्ट 3% नेगेटिव से 2 से 3% पॉजिटिव आ गए. मेरे हिसाब से ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी एंड एनीथिंग क्लोजर टू $95 फॉर WTI और ब्रेंट करीब 100-102 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी. इवन आफ्टर दिस वॉर गेट्स ओवर इट विल टेक सम टाइम ये नॉर्मल स्टेबिलिटी आने के लिए. प्राइसेस थोड़ा बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे कंटिन्यूड रहनी चाहिए. और 111-12 और 118 तक के स्तर भी हम इवेंचुअली WTI में देख पाएंगे आने वाले कुछ दिनों के हफ्तों के अंदर. ऑल राइट, तो यानी कि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर कच्चे तेल में भी आ सकती है. 112-118 तक के लेवल्स यहाँ पर बन सकते हैं. किस तरह से आप रुपए को देखते हैं नवनीत, क्योंकि आज का दिन थोड़ा अच्छा गया पिछले 7-8 दिन की लगातार गिरावट के बाद, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? पिछले कुछ दिनों में आरबीआई की तरफ से कोई खास इंटरवेंशन आया था और ना कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट की तैयारी हो रही थी. बट कल पोस्ट मार्केट क्लोजर हमने देखा है कि $5 बिलियन का सेल बाय स्वैप अनाउंस किया गया. एंड टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि पिछले साल भी
बहुत मैसिव इस तरह के स्वॉप्स अनाउंस किए गए थे रुपये के फॉल को कंटेन करने के लिए। तो दिस टाइम अराउंड ऑल्सो मुझे लगता है कि 97 98 के लेवल डिफेंड कर बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किए जाएंगे एंड टाइम एंड अगेन यू विल सी सच काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड अनाउंसमेंट फ्रॉम आरबीआई। तो ओवरऑल ये ट्रेंड डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। अभी भी बायस कोई भी तरह से चेंज नहीं हुआ है। 98.5 अभी भी एक ब्राइट पॉसिबिलिटी है, बट शॉर्ट टर्म रिएक्शन जो कि इवेंट जिस तरह से कल आया है उस तरह से आएंगे तो हमें एक छोटा मोटा अप्रिसिएशन का रूप देखने मिल सकता है, जहां से आज हम देख रहे हैं। और 95-50 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा जिसके नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एंड वापस 97.5 98 की तरफ हम कुछ हफ्तों के अंदर जाएंगे, ये पॉसिबल हो सकता है। किस तरह से आप गोल्ड के प्राइसेस देखते हैं, क्योंकि जैसे क्रूड मूव कर रहा है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पर गोल्ड मूव कर रहा है। सुबह की शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन हम उन गेन्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। वेल स्टार्ट ऑफ द डे ऐसा लग रहा था कि क्रूड गोल्ड सिल्वर अब सब कुछ एक पॉजिटिव ट्रेंड या एक रिवर्सल वाले मोड में आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों की वोलेटिलिटी के बाद में, बट एवरीथिंग इज चेंज सडनली। अब मुझे लगता है कि गोल्ड इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर $4250, यहाँ से करीब करीब 200 से 250 पाउंड की नरमी हमें आने वाले दिनों में गोल्ड में और देखने मिल सकती है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मुझे लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन अभी भी पेंडिंग है। ये जो हम नॉइज और वोलेटिलिटी को ट्रेड कर रहे हैं इसको चीरते हुए मार्केट एक बेस बनाएगा, मे बी 4200 मे बी 4300 के आसपास बेस बन के जब रिवर्सल आएगा दैट शुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड अ मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी गोल्ड बाय करके होल्ड करने के लिए। अभी ये फिलहाल ट्रेडिंग मार्केट है, फिलहाल ट्रेंड शॉर्ट टर्म में नेगेटिव साइड पे है, तो 800 से 1000 रुपए की नरमी के लिए और आप यहाँ से नेगेटिव साइड पे प्ले कर सकते। सिल्वर किस तरह से देखेंगे आप, क्योंकि 75 के आसपास हमने इसको यहाँ पर एक पाइवट बनाते हुए देखा है। 72 भी गया, 77 भी गया ऊपर में, यहाँ से क्या करें? वेल ब्रॉडर रेंज में 72 से लेके 80 ये एक रेंज में अगले कुछ दिनों में ट्रेड करना चाहिए सिल्वर। मेरा मानना ये है कि 72 के आसपास ही बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाई, यहाँ से करीब करीब 5 से 7 हजार पॉइंट की नरमी और देखने मिल सकती है। अगर ऐसा एक फॉल अगले इस आज के सत्र में अगले 2-3 सत्र में देखने मिलता है तो बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। डोमेस्टिक स्तरों में अगर मैं कहूँ तो क्रूड के प्राइसेस सिल्वर के प्राइसेस 2,65,000 2,62,000 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा बाय का। 255 का आप स्टॉप लगाइए एंड वापस रिबाउंड आपको 285 290 तक खेलने मिल सकेगा। एक फाइनल सवाल यहाँ पर कॉपर पे, जहाँ पर भी कुछ बाइंग आज सुबह देखने को मिली थी लेकिन अगेन कुछ मुनाफा वसूली वहां पर फिर से लौटी है। यहाँ पर नियर टर्म ट्रेडर्स क्या करें? वेल मैसेज जी, लास्ट कुछ महीनों से कॉपर और सिल्वर के बीच में एक 90% के आसपास का कोरिलेशन है। तो जब तक सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी या रिबाउंड नहीं देखने मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि कॉपर की चाल भी या डायरेक्शन भी कुछ हद तक रिकवर होती हुई नजर आएगी। ओवरऑल कॉपर में थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव स्टांस ही है एंड 135 130 तक के भी लेवल हम अगले 2-3 सेशन में देख पाएंगे। 152 153 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, तो सेल ऑन रिबाउंड का स्टांस यहाँ पर रखना चाहिए एंड 1355 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली बिकवाली यहाँ पर चांदी में, कॉपर में शायद बरकरार रह सकती है। कच्चा तेल लेकर चलें और जहां तक सोने की बात है 4250 तक के लेवल्स एक बार यहाँ पर आ सकते हैं। ये नवनीत दमानी की राय है। बहुत शुक्रिया नवनीत एज ऑलवेज जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।